ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਸਬਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਲੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਲ ਹੈ ਬੜਾ ਬਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ये अल्लाह ही जानता है या वो जाने वाला दुनिया तो जानता है। सुहेल जफर चट्टा साहब, उनको ये केस दिया जाए और मेरी अपील है कि जी बिल्कुल सही है। बड़े ईमानदार है वो। क्यों मेरा चट्टा को दे दे। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मियां रियाज और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। मुरीदके में इंसानी जान इंतहाई सस्ती हो चुकी है। राह चलते हुए अपने घर की दहलीज के ऊपर या कोई शख्स कारोबार कर रहा है तो उसको कब मार दिया जाए कोई पता नहीं चलता। यहाँ के जो अदारे हैं वो बिल्कुल नींदे खरगोश के मज़े ले रहे हैं। आज ऐसा ही एक वाक़या टाउन मुरीदके में पेश आया जहाँ पर 30 से 32 साल एहतशाम, जो कि एक बारबेक्यू की छोटी सी दुकान करता था, वहाँ पर जब खड़ा था, अचानक दो लोग आते हैं मोटर बाइक के ऊपर, एक पिस्टल निकालता है और फौरी इत्शाम के ऊपर 4 से 5 फायर करता है, जो उसके सर में लगता है और एक दिल के ऊपर लगता है और मौके पर वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। लवाहिकीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार इत्शाम ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से इत्शाम को अब्दी नींद सुला दिया गया। बूढ़ा बाप भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिसकी बुढ़ापे में कमर तोड़ दी गई है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये सारे हकायक हैं क्या। नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लवाहिकीन इत्शाम के मेरे साथ मौजूद खड़े हुए हैं और मुरीदके में इंसानी जान की कोई कदर कीमत ही नहीं। राह चलते हुए कोई किसी को गोली मार के फेंक जाता है तो किसी को अपना कारोबार करते हुए उसको गोली मार दी जाती है। लवाहिकीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इत्शाम ने आखिरकार किसी का क्या बिगाड़ा था कि जिसको टारगेट करके उसकी किलिंग जो है वो की गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चाचा जी, की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा रहमत अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ सबर दे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया है। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? मैं ते मेरा पुत्तर ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੋਈ 20-25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਿਛਾ ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਕੇ ਲਾਣ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਟਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਾ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਗਲੀ, ਉਹਨੇ ਯਕਦਮ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਗਲੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਨਕੁਆਟਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਲੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਲ ਹੈ ਬੜਾ ਬਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, 4 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਏ। 4 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਰਜਮ ਨੂੰ ਆਜ ਕੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸੀਸੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕਿਸੇ- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ।
नाज़रीन, यहाँ पर जो मकतूल है शाम, उसका जो बड़ा भाई है वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं, देख सकते हैं कैसे खून में लथपथ है। और जो शहर मुरीद के है, जिसको लियारी का नाम दिया गया था, ये लियारी से भी आगे जा चुका है। इसमें नाअहली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने अदारों की है, जो इस वक्त मुझे तो लग रहा है कि कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ बने बैठे हैं, क्योंकि ये किसी की जान को, किसी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ तो दे नहीं सकते, मगर ये पैसे बटोरने का लोगों से, आम शहरियों से काम अच्छे तरीके से जानते हैं। ये देखिएगा कैसे ये एक भाई है, आंखों में आंसू हैं, ज़ारो कतार रो रहा है और अपने प्यारे, ये मुरीदके में होने वाला कोई ये वाहद कत्ल नहीं है, ऐसे ही प्यारे अपने प्यारों की लाशें जो हैं वो उठाते रहते हैं। कोई किसी तरह का खौफ नहीं है। सेल ज़फ़र चट्टा साहब की खाली जो बड़के हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टेलीविज़न तक और ख़बरों तक महदूद हैं। बाकी अमल दरामद की मुरीदके की बात की जाए तो किसी को खौफ नहीं है। लड़ाई झगड़े तो रोज़ का मामूल है, कत्ल दूसरे तीसरे दिन हो जाना ये सीसीडी और हमारे इदारों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। मेरे भाई, क्या नाम है आपका? शफकत अली। अच्छा शफकत भाई, इन्ना जुल्म हो गया, जवान भरा दी लाश उठाना तो बड़ा मुश्किल होता है। नक टुट गया। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜੂਦ ਚ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਫੈਸਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਸ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲੈ ਆਓ ਭਾਈ ਘਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੁਆ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫਕਤ ਭਾਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਤਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। सही है। मेरे भाई, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले के ऊपर? इंसाफ चाहिए हमें सिर्फ। हाँ, मेरा कज़न है, मेरा भाई है, अच्छा। का बेटा है। यकीन है कि ये अदारे हमें इंसाफ देंगे? इंशाल्लाह इंसाफ देंगे। मरियम नवाज से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, सीसीडी से इंसाफ चाहिए हमें। भाई, क्या कहना चाहेंगे सारे मामले के ऊपर? इतना बड़ा जुल्म हो गया। हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ। बहुत हमारा टाइम गुजरा इसके साथ, कभी हमने कोई इसको बुरा काम करते हुए नहीं देखा। तो हमें बहुत दुख हो रहा है। ये इंसाफ मिलना चाहिए। कौन लोग हो सकते हैं जो ये सारा जुल्म कर सकते हैं? इस तरह का मामला कभी हमने देखा ही नहीं है इसको, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करते हुए। ये बहुत अच्छा आदमी था, हर किसी के साथ खुश होकर मिलता था। सही है। तो कोई समझ में नहीं आ रहा, तो इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, शुरफा लोग हैं, और जो मकतूल है उसकी सारे के सारे गवाही दे रहे हैं कि किस कदर कितना वो नेक और अच्छा इंसान था, उसके मोहल्ले में कितनी अच्छी आवाज़ थी, मगर फिर भी न जाने किस जालिम ने इस बूढ़े बाप का इस बुढ़ापे में जो कमर है वो तोड़ कर रख दी है। अब हमारे जो कौमी अदारे हैं, जैसा कि हमारी मुतलका पुलिस है, उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये जिस तरह से ये गरीब लोग हैं, अब इनके ऊपर वो मज़ीद कितना बोझ डालते हैं कि CDR निकलवाने के लिए इनसे क्या बटोरने की कोशिश करेंगे, और जो भी कहीं किसी मुलज़म की तरफ रेड करने के लिए जाना पड़ेगा तो वो इनको क्या तेल पानी के चक्कर में कितने पैसे वो लेंगे। तो जो हमारी मुतलका मुरीदके की पुलिस है, जिस तरह से वो काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इन कातलों तक वो बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकेगी। अगर 15 पे कॉल की जाती है तो उनका कहना होता है कि आप थाने में आ जाएं। अगर थाने में आ जाते हैं तो वो कहते हैं यार मुलज़म अगर आपके हाथ में आता है तो पकड़ के हमें दे जाएं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मुलजमान के तो जाके वो पकड़ भी सकें। अगर यहाँ पर CCD का या मुतलका पुलिस का अगर खौफ हो तो मुरीदके में हर शहरी बाहर निकलते हुए कभी भी ना घबराए। ये बेचारे को क्या पता था इस शाम को कि मैं काम पे जाऊँगा और घर वाले जो है वो मेरी
मेरी मौत की इतला सुन लेंगे। मैं यहाँ पर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक नज़र अरसा दराज से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुरीदके की तरफ नज़र दौड़ाई जाए। यहाँ के जो अदारे हैं वो बिल्कुल सो रहे हैं, आम शहरी जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। किसी को नहीं पता होता कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा या मैं नहीं आऊँगा। इस केस के मतलब जो हक़ाइक़ जो अपडेट होंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जी जी। एक सुहेल जफर चट्टा साहब, उनको ये केस दिया जाए और मेरी अपील है ये। ईमानदार, जी बिल्कुल सही है। बड़े ईमानदार है वो। क्यों मेरा सेल नंबर चट्टा को दे दो मेरा। जी बिल्कुल, सेल जफर चट्टा साहब इसकी किस तफसील जो है वो सुहेल चट्टा साहब को दी जाए। सेल जफर चट्टा साहब, आपके ऊपर पंजाब की जो आवाम है इनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जिस तरह से इनके साथ ये जुल्म हुआ है, जिसने ये जुल्म किया है उसको उसके अंजाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। यहाँ पर हम सब का अल्लाह निगहबान।